Malik. Good morning. Hopefully everybody is doing good. And आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक. तो भारत माता की तोड़ मालिक. We have discussed 2-3 things. एक बार उसको refresh मान लेते हैं. First of all, we have discussed how many levels of management are there who are deciding the strategy. 3. Corporate level, business level, functional level. Corporate level and business level can be called as general managers also. Business level manager can also be called as divisional managers, and most importantly, who are the specialists for their particular area? Functional level. Most importantly, we have discussed one more element, that all three managements, when we are discussing about this, you don't compare with top, middle, lower. If you are comparing with this top, middle, lower, you will be getting completely confused and your answer may go hayway. I have discussed like this also. If you remember, strategic manager and operational manager. We can discuss as corporate level and business level can be a strategic managers, and the functional level can be an operational managers. But to be very precise, keep in mind top, middle, lower, you need to avoid it out. This is what your concept need to be taken care of. After this, we have also discussed one of the important elements, strategy should be proactive as well as reactive. You need to have a blend of them, then only you will be told successful in the market. You can get 2-3 words if you remember. What is a told successful in a market is called concept of competitive advantage. When I say competitive advantage, what is the meaning of competitive advantage? Having industry average se zyada. If I am having more share than industry average, it is called competitive advantage. I hope this point is very clear. Now when I am saying industry average se zyada, if I want that share, okay, why it is so that I am getting more share than industry average? There would be something with me. That something is called core competency. Acha, what is the meaning of competency? Competency means you have a unique, you have a skill set. The skill set with you will be called as competency. Example, once you become a chartered accountant, you can become an auditor. Why you are becoming an auditor? Why you can become an auditor? Because you are competent enough to perform the audit. So what is the meaning of competency? Skill sets. But the skill sets which is I am having, but the other person is not having, that is called core competency. That is called core competency. So to have a competitive advantage, we require to have core competency. And competitive advantage should be only one time or sustainable? Sustainable. And therefore core competency should be always. Acha, can core competency be copied? Yes. So once it is copied, what should we do? More innovations. And innovations will bring you the more core competency, and so on. You will be successful in the market for a long term. That's how the structure works into mind. Okay, into your mindset. Make sure you remember this keyword: competitive advantage, core competency, sustainable competitive advantage. मैं इसको revise कराते जाऊंगा, याद दिलाते जाऊंगा. But once that is dumped up in particular chapters, the things will be very easy. But the you need to understand the practical aspects. After that, we have discussed yesterday the one concept that is called product life cycle. Product life cycle basically says like this: every product does have its own stages, and there are 4 stages for every product. What are the 4 stages for that every product? First is intro phase, second is growth phase, third is maturity phase, and fourth is decline phase. When I say intro phase means people are aware about the product or not aware? Not aware. So we need to make that aware about that product. Growth phase means everybody is aware about the product. Now everybody is competing for their share. That is called a concept of which phase? Growth phase. After that concept comes maturity phase. Is maturity and growth phase same? No. Both are growth only. But one is fast growth, and one is modest growth. So where is modest growth or slow growth? Maturity. But where is a fast growth? Growth phase. I hope both are clear. Okay. In which market share dramatically will increase? Growth. Where market share will incrementally will increase? Maturity. But when the market share starts falling down, that phase comes is called decline phase. I hope everybody clear. Okay. क्या आपने कल इस पॉइंट को रीड मारा था जो मैंने आपको बताया? तो क्या क्या कीवर्ड मार्क हुए अपन हाईलाइट कर लेते हैं एक बार. Okay. So first point. I hope everybody is on the particular page 2.17. 2.17, okay, and then I will be asking you a question about the strategy. Acha, one more recalling point. Do you remember the corporate level studies? What are the corporate level studies के name? Stability, expansion, retrenchment, and combination. Okay, so always combination will take it down. We will discuss only 3-1. What are the 3-1? Stability, expansion, retrenchment. Combination you are aware, therefore I am ignoring that point. So in expansion, we have discussed 4 more examples as such. What are the 4 examples on day 1 we have discussed? Market penetration, market development, product development, and diversification. I hope everybody remember this one. ठीक है, चलो. First point, okay, I am on 2.17. इसके पहले वाला फेज. अच्छा, इसके बाजू में आपने क्या लिखा? ये कौन सा आइटम में आया हुआ है? ये कौन सा आइटम के आरटीपीज में आया हुआ है? नहीं लिखा.
कल बताया था ना आरटीपी का. ओके, आरटीपी, अच्छा कल नहीं लिखा था मैंने, हाँ. वी हैव एंडेड आरटीपी नवंबर 23 एंड सितंबर 24. RTP November 23 and September 24. September 24 is also RTP, हाँ. This is RTP दोनों टाइम RTP में आया, एग्जाम में नहीं आया है. एग्जाम में आएगा तो I will not be using word RTP, I will be using a separate box inside it. So it is RTP November 23, September 24. Therefore, it becomes important question for January examination. In January, if the question comes, then it will be least important for May examinations. But in January, if this question does not comes, 101% May के लिए super LDR बन जाता. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट बिफोर गो, ये पंचायती अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज पे. आई वांट टू डिस्कस समथिंग. फर्स्ट स्टेज, इंट्रोडक्शन फेज. फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, विच ग्रोथ? स्लो सेल्स. यानी सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्रोथ है कि नहीं है, बट स्लो है. ओके, स्लो सेल्स इन विच कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. प्राइजेस आर रिलेटिवली, व्हाई प्राइजेस हाई? Why price is high? We have discussed this point yesterday. Volume is not there, production is not there, experience is not there. जब तक experience ही नहीं आएगा, product का cost कम कैसे करेंगे? Okay, that is main part with respect to this point. After that, markets are limited. Why markets are limited? Because user is not aware. So lack of awareness. Remember this. Why I am emphasizing on each keyword MCQ. The blunder is about MCQ. देखो थियरी होती तो थियरी में we would be remembering this words. Conceptually अपने को इसलिए समझना है because MCQ आपको पीछे पड़ेगा और MCQ blunder है. And 7 MCQ and 1 MCQ यानी total 8 MCQ will be there. Okay, in 7 MCQ 2 marks के question, this औकात is there, this capacity, this competency and capability is there. So this concept is capable of coming for how much marks? 2 marks, not for 1 mark. Okay, so remember this one. Then growth in sales is at which rate? Lower rate because of lack of awareness. I hope ये point पूरा clear है. कोई भी डाउट इसके लिए? My first question, cost क्यों आया ये समझ में आया? मार्केट में अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट पहली बार आया है, पहली बार ही आया है, तो किसी को अवेयरनेस नहीं है. लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? दैट इज कॉल्ड सेकंड फेज. व्हाट इज दैट फेज? ग्रोथ फेज. तो ग्रोथ फेज का पॉइंट बताइए मेरे को. ग्रोथ स्टेज में विथ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस. अब मेरे को बताओ, ग्लास का मास्क, क्या उसका ग्रोथ फेज आया? क्यों नहीं आया? यही नहीं हुआ ना, मार्केट एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ ना. व्हाई मार्केट एक्सेप्टेंस वाज नॉट डन बाय फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू कस्टमर. तो प्रोडक्ट इज यूनिक, फेयर इनफ, बट एट द सेम टाइम इट शुड एड वैल्यू टू द customer. If it is not adding value to the customer, it will be of no use. Okay, next point, in growth phase the demand expands rapidly, price falls. Why price fall? डिमांड बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट पर यूनिट कम हुआ because of experience curve. The next concept we'll discuss it. Okay, after that competition increases. Reason simple है, डिमांड बढ़ेगा तो लोग भी एंटर होंगे ना नए. And after that market expands. The customer has knowledge about the product and shows interest. Third phase में क्या है? Maturity phase. When there is a slowdown in what rate? Growth rate. यानी अभी भी growth है या नहीं है? है, but slow down है. Competition gets tough. मेरे को बताओ, यहाँ पर competition get tough and यहाँ पर लिखा था competition increases. दोनों में difference क्या है? नंबर में बढ़ता है. Competition increases means competitors are increasing because there is new market also. But the problem when I say competition become tough means we cannot get any new market here. So existing market will be fighting with each other. Therefore competition becomes tough. Because अब पहले क्या होता था, 10 कस्टमर थे तो 5 तेरे पास 5 मेरे पास. अभी कितने कस्टमर है? 2 ही. अब 2 के लिए तू भी लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूं. तो मैं ऑफर दूंगा, तू भी ऑफर देगा, फिर तू ऑफर देगा, मैं काउंटर ऑफर दूंगा, एंड सो ऑन. Therefore competition becomes tough. याद रखना. Market gets stabilized. Profit comes down because of stiff competition. Why profit goes down? समझ में आया? अभी example, you will be giving offer to that same customer. I will be giving a counter offer. Then again you will be giving counter offer. And ultimately profit तो कम होने ही होना है. Okay. And this stage organization has to work for maintaining stability. देखो ना word आ गया. Okay, stability. What is meaning of stability? If you remember, कौन सी strategy? Stability. Okay, corporate level management. याद आया? कॉर्पोरेट लेवल में कितनी स्ट्रेटजीज है? 3. पहला, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये 4 फेज में स्टेबिलिटी कब करते हैं? स्टेबिलिटी कब करना चाहिए? व्हेन यू शुड फोकस ऑन स्टेबिलिटी? मैच्योरिटी. व्हेन यू आर एट विच स्टेज? मैच्योरिटी स्टेज. यू शुड फोकस फॉर विच स्टडी? स्टेबिलिटी. यू कैन गो विथ एक्सपेंशन ना.
and retrenchment is not also suggested. Why? Because still there is a growth. I hope you are getting the point. तो retrenchment कब suggest करोगे? Decline में. Okay, I hope clear मालिक. तो अगला phase, fourth stage, downward drift. The sales profit falls down sharply due to some new product replace existing product. मेरे को बताओ, जब ये डिक्लाइन होगा तो कोई ना किसी का तो इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, समझ में आया? एंड वो जब ग्रोथ में आएगा ये प्रोडक्ट वाइप ऑफ हो जाएगा. ओके, सम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड टू स्टे इन मार्केट आइदर बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट. ओके, यू कैन यूज दैट एनी ऑफ द पॉइंट. नाउ आई होप दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. बाकी पॉइंट मसाला जो पड़ा हुआ है वो बाद में रीड करता हूं, मैं अभी कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं. मेरे को बताइए, what do you think, okay, in maturity stage, which strategy, which corporate level strategy can be used? Stability. Perfect. In growth phase, which corporate level strategies can be used? Expansion. Okay, I hope everybody clear. What should be done in intro phase? Combination. Intro phase में कैसे combination आएगा? Intro phase में what you will do? Think logically. Expansion. In intro phase, you will go with market development. You will go in new market. पहला existing market को नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट. ओके, आपको समझना जरूरी है. इन existing market प्रोडक्ट अवेयर करवाना है. तो इंट्रो फेज में कौन सा होगा? हाँ, हिंट देता हूं, एक्सपेंशन करेक्ट है, बट एक्सपेंशन एग्जैक्टली नहीं हो सकता सारा का सारा. इन ग्रोथ फेज यू कैन गो विद एक्सपेंशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन कैन बी देयर इन विच फेज? Growth phase. But in intro phase there will be only one specific answer: market penetration. What is meaning of market penetration? Existing market को और प्रमोट करो, अवेयर करवाओ. I hope you are getting the point. तो भाई साहब इसके बाजू में लिख के रखने का. फर्स्ट स्टेज में कौन सा स्ट्रेटेजी? एमपी का मतलब मार्केट पेनिट्रेशन. ओके, सेकेंड फेज में एक्सपांशन कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब 4 टाइप में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना, पक्का? मेरे को बताओ. आई होप एवरीबडी इज एबल टू, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन ऑनलाइन पर लोग समझ में आ रहा है सब लोग को? सत्यम, साईराम, अभिनव, वाह कहानी. ओके, तो बेसिकली थर्ड फेज के लिए तो आंसर सबका सेम ही आना चाहिए. What is the strategy? Stability. Okay, and last stage is basically which one? Okay, they have said is diversification. What is meaning of diversification? New product, new market. But new product, are you getting the point? Why it is suggesting new product? Because this product ka life cycle is getting over. So you can't work with this product. So last mein your main strategy will be either diversification or retrenchment. Okay, what happens in retrenchment? Retrenchment will have how many points? 3. One is turn around. टर्न अराउंड अगर अच्छा रहा ना, क्या होगा मेरे को बताइए आप. अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ, ये लिख लिया आपने, बाजू में सब स्ट्रेटजी लिख ली एवरीवन? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, इधर आ जाओ, डायग्राम में आओ. टेक 5 मिनट्स मोर ऑन दिस कॉन्सेप्ट. आई एम स्पेंडिंग इट बिकॉज इट विल बी फ्रूटफुल बाय नेक्स्ट वीक. ओके, बाय नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल दिस कॉन्सेप्ट. माय क्वेश्चन, डिक्लाइन फेज हैपेंस. इन दिस व्हाट यू सजेस्ट? At this point, what do you suggest? Diversification or retrenchment? Okay, diversification suggests new product, new market. But that is not my point. Reason I am not having any new product. Now, what do you suggest? Retrenchment. It means retrenchment. Now, question is retrenchment means what? Retrenchment goes with 3 points: turnaround, divestment, and liquidation. Liquidation is the last resort. But first of all, focusing on which strategy? Turnaround. शांति से, एकदम आराम से, रिलैक्स मोड में टेल मी, टर्न अराउंड किया मतलब क्या किया? टर्न अराउंड किया मतलब ग्रोथ. यही पॉइंट आपको समझना जरूरी है. टर्न अराउंड करना मतलब क्या करना? अच्छा, टर्न अराउंड में एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, टर्न अराउंड में आई नीड टू डू समथिंग बाय विच द प्रोडक्ट विल बी लाइक्ड अगेन. इन टर्न अराउंड एम आई गोइंग विथ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कुछ चेंज करूंगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट. बट व्हाट हैपेंस इन टर्न अराउंड? इनोवेशन होगा, समथिंग अच्छे से प्रोडक्ट केस में चेंजेस करूंगा, री इंजीनियरिंग. प्रोबेबली इफ सपोज आई एम इन डीलिंग इन वेफर्स, आई विल कम टू नो भाई वेफर क्यों नहीं लाइक कर रहे, तो समझ में आया, पब्लिक जा रही है हेल्थ फ्रीक, पब्लिक इज गोइंग ऑन हेल्थ फ्रीक. तो बेक्ड वाले वेफर्स के लिए जा सकता हूं मैं. टर्न अराउंड, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मतलब इसमें आपको टर्न अराउंड कब करना है ये पॉइंट आपको जरूरी है. डिक्लाइन मतलब मेरी लग गई है,
क्लियरली अंडरस्टैंड दिस डिक्लाइन इज बेसिकली लग गई है मतलब प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो इज नेगेटिव, मेरा एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। बिगेस्ट प्रॉब्लम तब जाके डिक्लाइन आता है, अगर मेरा कैश फ्लो ज्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, स्टिल आई एम इन स्टेबिलिटी मैच्योरिटी। बट वंस इनकम, तो व्हेन डिक्लाइन फेज कम्स माय इनकम goes down and what increases? Expense. So in this case turnaround comes into picture. Turnaround में और factors रहेंगे which we'll discuss in next week, but right now एक concept मेरे को बताओ, turnaround किया, मैं बोल रहा हूँ turnaround is successful, तो what does it happen? How ये chart कैसे आगे कैसे जाएगा? नहीं, मार्केट पेनिट्रेशन उसके बात करेंगे अपन, बट मैं बोल रहा हूँ ये कैसे चार्ट कैसे आगे बढ़ेगा? क्या ये सीधा अगले दिन से ऐसा होगा? तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा टर्न अराउंड सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको आप ध्यान में रखना, प्लीज मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। जब ये डिक्लाइन फेज को मैं स्टेबल बना दूं, डिक्लाइन फेज को, तो मेरे को समझ में आएगा टर्न अराउंड इज सक्सेसफुल। नहीं समझा? टर्न अराउंड सक्सेसफुल कब है, कब समझेगा? जब डाउनवर्ड और डाउन नहीं हो रहा है, उस पर अटक गया। आई होप समझ में आया। एंड ये हुआ, इसका मतलब मेरा टर्न अराउंड सक्सेसफुल। और अब मेरे को बताओ, अगर ये स्टेबल आ गया, अब मुझे ग्रो करना है वापस, मैं क्या करूंगा? स्टडीज एक्सपांशन। तो अगर ये स्टेबिलिटी लाना इज ए टास्क ऑफ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मेन टास्क क्या होगा? मतलब वापस नीचे जाने के बाद रोक देना। आप अगर बोल रहे हो सर ये वापस ऐसा होना, ये वापस है ना टर्न अराउंड एकदम लास्ट में होगा, पर पहले एक बार मेरे को है ना स्टेबल पॉइंट पे, तब जाके समझेगा। और अगर बाय चांस टर्न अराउंड करने के बाद भी इफ दिस इज नॉट हैपनिंग एंड इट इज गोइंग स्टिल डाउन, इट मींस टर्न अराउंड इज नॉट सक्सेसफुल। टर्न अराउंड इज मींस नाउ यू आर अवेयर दैट प्रोडक्ट विल नेवर बी लाइक्ड, सो इन दैट केस व्हाट शुड बी डन? रिट्रेंचमेंट। टर्न अराउंड भी रिट्रेंचमेंट ही है। व्हाट शुड बी डन? रिट्रेंचमेंट। अबे तो रिट्रेंचमेंट ही है टर्न अराउंड। इन टर्न अराउंड डाइवेस्टमेंट, बट डाइवेस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव ए other unit or other products, na? If I'm not having other products, then liquidation. That's your choices. I hope everybody clear, Malik. पक्का समझा? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नीचे जाने के बाद जब मैं टर्न अराउंड करूंगा या डाइवेस्टमेंट करूंगा तो कैसी कहानी बढ़ती जाएगी, ग्राफ कैसे बढ़ते जाएगा, ये याद रखना, अगले इसमें स्टेजेस में काम आएगा। बट बिफोर दैट, ओके, एनी डाउट विद दिस? एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स आपको ये समझ में आया? पक्का? एक बार बैठ जा, ठंडी ठंडी ना, एसी ना, हाँ मैं समझा। हाँ, बाकी क्लास में कुछ हो ना हो, एसी का इफेक्ट इज कांस्टेंट। एसी के इर्द गिर्द बैठे वाले लोग और जो एसी के दूर बैठे हुए तो फैक्टर्स है। बट ब्रीफली, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. This concept can be also applicable to business also. Example, similarly how product का growth phase goes on, how it goes on decline, similarly the concept is applicable to business also. Business can also have the same phases. Business I'm saying, not product. I'm discussing about business. Business can also grow with introduction, then grow with growth, maturity and decline. Again, if you don't do anything, the business will go down. This is how concept applies for product life cycle. इसको पढ़ के खत्म करो एक बार. Nothing to be marked, but just read it once. An important choice is a concept in which word? Strategic choice. Which is strategic choice is your chapter 4th. Strategic choice is basically chapter 4th. Okay, an important concept in strategic choice is the product life cycle. It is useful concept for guiding strategic choice. Guiding. समझ में आ रहा है? Strategic choice में guide करेगा. Essentially, product life cycle is a S-shaped curve which exhibits the relationship between sales with respect to time for the product that passes through 4 successive stages. You are already aware. If businesses are substituted, ये line अगर आप देखोगे, business are substituted for product, the concept of PLC could work just as well. यानी this concept is also applicable to business. Done, Malik? Everybody? Perfect. Okay. After that, okay, come to the next part after diagram. What is an advantage of PLC? अच्छा. If suppose in examination you get a question on PLC, directly a question on PLC, what answer you will write? First of all, am I required to draw a diagram? Answer is yes. Diagram is compulsory. Diagram is compulsory. तो don't मतलब आप ये मत पूछना, जिधर diagram दिए हुए है वहां पर diagram compulsory. मीम नहीं, मीम भी मिलेंगे, but there is that need to not to be reproduced. Diagrams are compulsory. In this case, diagram is compulsory.
Now, how you will reproduce this particular point? Sir, am I required to write such a format as like this? No. Okay, इसका मेन कंटेंट आपको उठाना है that product life cycle is an, ये पहली लाइन, it is an important concept for what purpose? Strategic choice. ये आपका ब्रीफ है. बाकी आपको लिखना है तो लिखिए, but main target of product life cycle is about this 4 stages. Make sure 4 stages upside down ना कर दो आप. Example, competition increases किस में लिखोगे? Growth. Competition gets tough? Stability. ये स्टेबिलिटी मतलब मैच्योरिटी. मैं स्टेबिलिटी वर्ड आ गया, मैच्योरिटी. आई होप ये क्लियर है. बस आप इसको ध्यान रखना. इसमें मिक्स कर दिए, यू आर डन एंड डस्टेड. तो मेक श्योर ये पॉइंट मिक्स ना करो. एंड सर लास्ट पॉइंट एक और एक आता है, एडवांटेजेस. ये एडवांटेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल लॉजिक है सर. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कब काम आता है? चैप्टर 4 में काम आता है. तो इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एट द स्टेज एट विच देम एग्जिस्ट. मेरे को बताओ, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मेरे पास आगे, आई होप एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट. मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? मल्टीपल. अब मेरे प्रोडक्ट कौन से स्टेज में, इफ आई आइडेंटिफाइड दिस, कैन इट विल बी इजी फॉर मी टू डिसाइड ए स्ट्रैटेजी. एग्जांपल, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन मैच्योरिटी फेज एंड इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन growth phase, if one of the product is in decline phase, now can I decide the strategy on the basis of this life cycle? Help me out. The product which is in maturity phase, I should decide the strategy. Stability. Which is in growth phase? Expansion. In expansion I can decide market, what जो भी रहेगा. In decline I can decide about retrenchment. This is how this will start, this particular life cycle helps. तो अगर कोई बोलता है भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्यों डालना चाहिए, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द रीजन व्हाई शुड वी फिट आवर प्रोडक्ट इन दिस लाइफ साइकिल? बिकॉज इट विल हेल्प टू असिस्ट इन डिसाइडिंग स्ट्रैटेजी. बहुत सारे चॉइसेस है स्ट्रैटेजीज के, लेकिन कौन सी स्ट्रैटेजी? तो दिस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग द स्ट्रैटेजी. दैट इज योर पर्टिकुलर पॉइंट. पर्टिकुलर अटेंशन टू बी पेड ऑन द बिजनेसेस दैट आर इन विच स्टेज? डिक्लाइनिंग. यानी आपको समझेगा भाई ये जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है. And the last concept, depending on diagnosis, क्या है? Appropriate strategy choices can be made. तो मेरे को बताओ, अगर आप देखोगे ये 3-4 लाइन का एडवांटेज लिखा हुआ है, इसका कंक्लूडिंग पॉइंट एक ही है. Whatever you read this particular point, what is the concluding point of this part? It will help in deciding strategy. It will help in deciding strategy. And ज्यादा ध्यान किस पे देना होगा? कौन से फेज पे? डिक्लाइन. बस वही तो लिखा हुआ है मालिक. That's what is structure. Okay. MCQ के बुकलेट में आपको इसके ऊपर मल्टीपल MCQ मिलेंगे. We'll be having a multiple MCQ in compiler also. We'll be having multiple MCQ based on integrated case studies also. But just make sure you understand very clearly. Once we complete this particular point, a 4th chapter, okay, and we enter into business level strategies. Which strategies? You need to try to integrate both of them. I'm telling you, chapter 1, makhan. Chapter 2, makhan. Chapter 3 का E3A, makhan. 3 का 3B, conceptually you will think very easy, but it will be difficult while cracking the questions. Difficult while cracking the question. 4th, conceptually very easy, will be finding difficult while cracking the questions. So 3B and 4th will be difficult in cracking the questions. 5, it's a voluminous chapter. तो 5 में है ना प्रॉब्लम है वॉल्यूम का. 1, 2, 3, 4 में वॉल्यूम इज नॉट ए प्रॉब्लम. तो 1, 2, 3, 4 याद रखना आसान रहेगा, रिवाइज करना आसान रहेगा. फिर रिवाइज करना मुश्किल होगा. एग्जांपल, इफ करंट रिवीजन विच इज गोइंग ऑन, मेरी अभी रात को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ जो रिवीजन चल रहा है, ओके, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर हैज बीन डन इन 1 लेक्चर ऑफ 2 आवर्स. ये डिटेल रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, जो जूम सेशन पे लेता हूं. यानी आपका भी होगा जब मे का एग्जाम आएगा, जो अपनी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आपको जूम की लिंक आएगी, उस पर अपन इंटरेक्ट करेंगे. दैट जूम रिवीजन विल बी देयर. ओके, और ये फिर यूट्यूब पे जाएगा 15-20 दिन के बाद. दैट्स हाउ द थिंग्स हैपन. तो 2 घंटा हर चैप्टर को लगता है. कौन से चैप्टर को? चैप्टर 1, 2, 3, 4 को तो 2 घंटा भी टोटल नहीं लगता, पर टेक्निकली ये 2 घंटे के सेक्शन ये है. चैप्टर 5 को 4 घंटे. पर ये कौन से रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं? डिटेल. देखो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ रिवीजन है, बट व्हाट आई वांट टू कन्विंस यू इज दैट विच इज वॉल्यूमिनस चैप्टर? चैप्टर 5. एंड इन दैट चैप्टर वी नीड टू मैनेज द थिंग्स वेरी फेयरली. बट 2 chapters will be where questions will be very confusing, and one will be 3B and 4. And I can bet, मतलब अपन ये शर्त लगाते आज, and approximately we can discuss this on 25th December almost on Christmas. Okay, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दूंगा, मतलब जबकि उसके पहले ये चैप्टर्स हो गए होंगे. आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम गिविंग 10 days टाइम, मतलब 15-16 तक मेरे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है चैप्टर 4 का. उसके बाद 3B का. आई एम टेलिंग यू, आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम गिविंग 7 to 8 days टाइम. और उसके बाद भी मैंने अगर क्वेश्चन फेंका
आई एम बेट ओके इसके आप है ना, ये क्वेश्चन की जगह ये चैप्टर की जगह ये चैप्टर रहेगा, ये एप्लीकेबिलिटी है, तो इसको बहुत थरोली समझना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है. इट्स ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड देन इट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना जल्दी इजीली क्रैक होते जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा. तो इसीलिए जब भी मैं कोई एग्जांपल दूं आपके साथ में, प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल्स थरोली. और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जब अपन लिखेंगे तो मैं हर टाइम ओफू लिखते जाऊंगा. व्हाट इज एन ओफू? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये अपने को एग्जाम में लिखना, लेकिन ये आपको पढ़ते वक्त जो क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए बेस है ना, वो ओफू ही रहेगा. तो चैप्टर 4 और 3B में मैक्सिमम क्या आना चाहिए? ओफू. जितना आप ओफू लिखोगे, ओफू समझोगे, उतना अच्छा रहेगा. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर पहला कॉन्सेप्ट अपन ने बेस रेडी कर दिया. और एक कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्सपीरियंस कर्व. व्हाट इज एन एक्सपीरियंस कर्व? एक्सपीरियंस कर्व इज बेसिकली अ लर्निंग इफेक्ट. अब मेरे को बताओ, जब पहली बार आप एसएम पढ़ोगे, आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. व्हेन यू रीड इट सेकंड टाइम, विल इट रिक्वायर द सेम एक्स और इट विल बी लेस देन एक्स? Okay, I am not discussing how much less than x, but it will be less than x na. When you reading third time, less than x second वाला. Okay, when you are doing 10 time, बहुत कम टाइम लगेगा. देखो जीरो कभी नहीं लगेगा, ऐसा मत बोलना. Okay, but there will be reduction in time and one point of time it will be an appropriate time. Okay, technically speaking, मेरे ख्याल से you are already aware about spiral binding concept. आपकी कॉस्टिंग की बुक, okay, spiral binding है. अब आप ये समझिए, टू डू दैट स्पाइरल बाइंडिंग, अगर मैंने वो बुक निकाली और स्पाइरल बाइंडिंग आपने मेरे को करने को दिया, कम से कम ओके, बीइंग हाईली क्वालिफाइड पर्सन, आई एम ए सीएस, सीसा, डीसा, बीसीसीबी, सीसम, बीसीसी, एमबीए, 8 क्वालिफिकेशंस अगेंस्ट माय नेम. ओके, और अगर मेरे को आपने करने दिया, मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट जाएगा वो स्पाइरल बाइंडिंग करने को. एंड द पर्सन हु मे नॉट बी 10th क्लियर ऑल्सो, सिटिंग नीचे इन द शॉप, will be doing in a fraction of seconds, not even a minute. What I'm saying? Seconds. भाई साहब, he is not qualified. 10th पास भी नहीं रहेगा. और भाई साहब आप इमेजिन करो, #stop discrimination, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, समझ में आया? सबसे पहला मोटिव वो डाल दूं, नहीं तो चालू हो जाएगा फोटो डाल के, सर डिस्क्रिमिनेटिंग, यू मे बी क्वालिफाइड बट देयर, छोड़ रहे, so #stop discrimination. But the thing is, how it is possible that person who is not even a 10th qualified, then also he can fatafat do the spiral binding, and I am not doing this one. Experience. This is called a concept of experience. तो मेरे को बताओ किसका कॉस्ट कम लग रहा है? उसका. किसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा? मेरा. अभी अगर मैं उसके पास काम करूं, वो जॉब पे, शॉप पे, अब वो बोलना मत है क्वालिफाइड की वजह से पैसा, वो पैसा नहीं, जितने टाइम में वो बुक बनाएगा, ओके, सपोज 100 बुक्स बनानी है, जितने टाइम में दैट पर्सन विल बी डूइंग स्पाइरल बाइंडिंग ऑफ 100 बुक्स, ओके, आई डोंट थिंक सो इवन ए 10 बुक्स आई विल बी कंप्लीटिंग. 10 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं. तो मेरे को बताओ किसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी? मेरे केस में किसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी? तो एक्सपीरियंस कर्व इज बेसिकली फोकसिंग ऑन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस. इट इज नथिंग टू डू विथ क्वालिफिकेशन. तो एक चीज कभी भी बोली जाती है, आई होप यू हैव लर्न, मतलब यू हैव हर्ड दैट समवेयर और समवेयर, ओके, आप ओवर ए पीरियड बहुत जो काम करते थे पहली बार, ओवर ए पीरियड वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो. दिस कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व. व्हाट इज एन एक्सपीरियंस कर्व? एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से आता है. एक्सपीरियंस कर्व को मैं अभी एक बार बता रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, बाद में नोट्स में लेके जाता हूं. इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है. ये होता है कॉस्ट और ये होता है टाइम. और एक्सपीरियंस आप बोलो, जब इनिशियल टाइम था तो कॉस्ट ज्यादा, बट ओवर ए पीरियड व्हेन यू गेट एन एक्सपीरियंस, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस कर्व. Experience curve come from multiple effects. One is learning effect. How much you learn, the cost per unit automatically will reduce because the things will be betterly done by you. So first is it is because, अच्छा, मेरा पहला पॉइंट है, what is meaning of experience curve? Experience curve मतलब cost per unit ज्यादा आएगा या कम आएगा? Over a period cost per unit कम आएगा over a period. ये कॉन्टेक्स्ट समझा मालिक? तो मैं बोल रहा हूं एक्सपीरियंस कर्व ओवर ए पीरियड कॉस्ट पर यूनिट, तो उसका कारण क्या, उसके फैक्टर्स क्या? तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज लर्निंग इफेक्ट. फर्स्ट फैक्टर इज बेटा, वंस अगेन, लर्निंग इफेक्ट. सेकंड फैक्टर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? प्रोडक्शन जितना ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट उतना कम. वंस अगेन आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को एक कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और मेरे ख्याल से विनोद सर के इसमें कॉस्ट पर यूनिट का कुछ तो डिस्कशन हुआ रहेगा, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ तो आया रहेगा, समथिंग लाइक दैट.
Okay, imagine करो, if I need to develop only few of the units and I need to develop wholesome quantity of units, कहां पर cost per unit कम होते जाएगा? Wholesome quantity. That is nothing but economies of scale. So what is the meaning of economies of scale? Economies of scale. Volume increases, cost decreases. Volume increases, cost. I am not discussing price. I am discussing cost. I hope everybody clear, Malik. First point. Okay, once again, what is the meaning of experience curve? Over a period, experience, over a period of experience. Okay, it's cost per unit decrease. How many factors are there? First factor, learning effect. Second factor, economies of scale. सबकी आत्मा इधर. Okay, economies of scale को I'll be doing like this action. हाँ, economies of scale. Economies of scale मतलब volume increase. तो जितना ज़्यादा volume, cost per unit कम. अच्छा, मेरे को बताओ. Do you think product development also will help in experience curve? What is meaning of product development? Product development means what? याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है. Same market, new product. अब new product मतलब completely new product और existing product में features change करना. Features change करना. अब features change करके हम वो product को और बेहतर बनाते ना. तो इसका मतलब ये क्यों आता है बेहतर बनाने का? Experience का. तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा तो उसका एक और एक रीजन क्या है, उसका एक फैक्टर क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और मे बी प्रोबेबली वन मोर कॉन्सेप्ट कैन बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी इनोवेशंस. टेक्नोलॉजी. So help me out. Nowadays, to produce something compared to 20 years back, compared to 20 years back, the things were done manually. Nowadays, the things are done manually or automation. Now tell me, because of automation, cost per unit. That's how experience curve comes into picture. Experience curve is also called as learning effect. Experience curve is basically with whom? Large companies. Small companies के लिए experience curve नहीं रहेगा. क्यों? छोटी कंपनीज के लिए एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट बहुत कम रहता है, बड़ी कंपनी के लिए एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. स्मॉल कंपनीज के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना मुश्किल है, लेकिन बड़ी कंपनी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना आसान. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन हैव ए CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं. यस्टरडे वन वर्ड, टुडे मॉर्निंग आल्सो वर्ड डिस्कस वन वर्ड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ दिस एक्सपीरियंस कर्व इज आल्सो ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. तो अब मेरे को बताओ, ओके, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज 3 कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस. तो हेल्प मी आउट इन दिस 3 strategies, which is the strategy, okay, where experience curve will required? Cost leader. If your strategy is to become a cost leader, which effect comes into picture? Experience curve. भारत माता की जय. I hope you are clear with this point, Malik. पक्का एक्सपीरियंस का समझा? अच्छा, एक्सपीरियंस का ओके, 4 फैक्टर्स बताइए. व्हाट आर द 4 फैक्टर्स? फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग इफेक्ट. सेकंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजी इनोवेशंस. टेक्नोलॉजी इनोवेशन. अगेन प्लीज मेक इट श्योर माय फ्रेंड्स, ओके, व्हेन आई से टेक्नोलॉजी इनोवेशन इट डज नॉट मीन टेक IT. दिस आई मेड यू क्लियर यस्टरडे. तो व्हेन आई से टेक्नोलॉजी इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन, बेस में इनोवेशन. ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है. ठीक है, थोड़ा सा आगे के पेज पे जाते हैं मालिक. कम टू द पेज नंबर 2.28. 2.28 पे आए. 2.28 मिला मालिक? ओके सर, एक्सपीरियंस कर्व अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं आया हुआ है. नॉट इवन आस्क्ड सिंगल टाइम. ओके, दिस हैज बीन आस्क्ड ओनली वंस इन RTP एंड दैट आल्सो न्यू सिलेबस RTP एंड दैट इज RTP May 24. September 24 में एग्जामिनेशन में भी नहीं आया हुआ है. तो ये अभी तक कितनी बार आया है? एक बार. और कौन से सिलेबस में? कौन से सिलेबस, न्यू या ओल्ड? न्यू. RTP May. ये क्या हो रहा है भाई? मैं लिख भी नहीं रहा हूं तो भी तो क्यों लिख रहा है अपने आप? RTP आखिरी बार, नहीं तो टूट जाएगा. अरे यार, अच्छा आप लिख लो, नीचे लिखने का, उधर उधर एरिया खराब है. May 24 RTP May 24. ओके, फ्यू कीवर्ड्स यू हाईलाइट इन द नोट्स जो आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपीरियंस कर्व
is like a learning curve which explain the efficiency increased gained by workers. Efficiency word gained by workers through which work repetitive work. Okay, this particular concept is basically working in repetition. How much you will repeat? Okay, so you will be gaining what curve? Experience curve. That is also called a which curve? Learning curve. Experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit cost decline as firm accumulates experience in terms of cumulative volume of production. ये समझ में आया? कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना कॉस्ट कम होगा. ओके, तो इसीलिए बड़ी फर्म को ज्यादा इसका बेनिफिट मिलता है, छोटी फर्म को नहीं मिलता. क्यों? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. वॉल्यूम ज्यादा रहता है उनके पास. इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो. ठीक है. द इंप्लीकेशन इज, ये भी हाईलाइट कर लीजिए, द इंप्लीकेशन इज दैट लार्जर फर्म इन इंडस्ट्री वुड टेंड टू हैव लोअर यूनिट कॉस्ट एज कंपेयर टू दोज ऑफ स्मॉलर कंपनी. एंड उनके लिए कौन सा एडवांटेज आएगा? उनको सीए कभी भी याद रखने का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उन्होंने लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ. तो मेरे को बताओ, जिनको ये बेनिफिट मिला है उनकी स्ट्रैटेजीज मार्केट में क्या होती है? Those who have received this benefit of experience curve, the strategy in the market will be cost leader. Okay, the person who is doing in differentiation is never interested in experience curve. अच्छा, what is the differentiation? If you remember, okay, सबसे सस्ता या सबसे अलग. तो मेरे को बताओ, सबसे अलग करने के लिए कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा क्या? एक्सपीरियंस भी काम नहीं आता, उसको बार बार इनोवेशंस करने पड़ते हैं. ओके, रिमेंबर दैट. तो जब मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन, एक्सपीरियंस कर्व इज नेवर एन एडवांटेज फॉर देम, बट फॉर कॉस्ट लीडर एक्सपीरियंस कर्व है. ठीक है, मैं बोल रहा हूं एकदम अच्छे से, बिकॉज मैं स्टेबिलिटी वगैरह के साथ लिंक करूंगा. वंस आई कंप्लीट, यू टेल मी, यू विल बी टेलिंग मी आंसर. एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? हाईलाइट कर लीजिए उसको. लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. पर कौन से एरिया में? प्रोडक्शन के एरिया में. कौन से एरिया में? प्रोडक्शन. तो चार वर्ड्स क्लियर है मालिक? ओके. एक्सपीरियंस कर्व हैज फॉलोइंग फीचर्स. दिस नीड टू बी रटिफाइड. रटिफाइड मतलब आपको याद रखना चाहिए, ये और ये दो पोर्शन आपने याद रखना चाहिए भाई साहब. These two things need to be remembered. Whenever I will be doing revision, how many things will remember or recall or revise again and again? These 2 points. मैं हमेशा आपसे पूछूंगा एक्सपीरियंस कर्व कौन से एरियाज में, कौन से फैक्टर्स की वजह से आता है? तो आंसर विल बी 4. और एक्सपीरियंस कर्व के फीचर्स क्या है? कितने फीचर्स रहेंगे? 3. इजी है, सारे के सारे डिस्कस है. पहला, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, दे गेन एक्सपीरियंस. तो पहला पॉइंट, वो जैसे ग्रो होंगे एक्सपीरियंस आएगा. एक्सपीरियंस कर्व में प्रोवाइड एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिशन. सीए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, अब ये एक ध्यान रखना, एक वर्ड लिया इन्होंने, एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री. व्हाट डज इट मीन? इट इज अ की बैरियर टू द एंट्री. न्यू जो कॉम्प्यूटर आना चाहते होंगे वो आ नहीं पाएंगे. क्यों? एक्सपीरियंस कर्व नहीं, उतना सस्ता नहीं दे पाएंगे ना. सपोज आई एम ऑलरेडी हैविंग एन एक्सपीरियंस कर्व एंड आई एम डिलीवरिंग इन द सस्ता मार्केट वेयर माई कॉस्ट पर यूनिट इज लेस, तो माई प्राइस इज वेरी लेस. प्राइस इज, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है. नाउ हेल्प मी आउट. इफ एनीबडी वांट टू कम इनटू मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ही हैव ए मार्केट शेयर? नहीं, मार्केट शेयर उसको बनाना पड़ेगा. तो स्टार्टिंग में उसका प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. अब कम होगा, उसका कॉस्ट पर यूनिट. ओके, कहां से कंपीट करेगा? लेकिन याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस सेंसिटिव मार्केट में चलता है. कौन से मार्केट में? जहां पर बायर इज प्राइस सेंसिटिव. अब जैगुआर में ये नहीं बोल पाओगे. ओके, आप ऐसा नहीं बोलोगे जैगुआर में एक्सपीरियंस को कॉस्ट पर यूनिट इट इज ए बैरियर. जैगुआर में कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट ए बैरियर. जैगुआर में ब्रांड इज ए बैरियर. डिफरेंशिएशन. तो मेक इट श्योर इट्स ए बैरियर ओनली इन विच मार्केट? प्राइस सेंसिटिव. दिमाग चल रहा है ना मालिक? तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ध्यान रखने का. एंड तीसरा पॉइंट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस है, लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट. तो 3 कीवर्ड कैसे रटोगे? सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, एक्सपीरियंस बढ़ेगा. नेक्स्ट, उसको क्या आएगा? एडवांटेज. एंड थर्ड, ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी गेटिंग दिस एडवांटेज? लार्ज एंड सक्सेसफुल. एम आई रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द डायग्राम? यस. ओके, मिला क्या मालिक? डायग्राम मिला?
डायग्राम कर्व समझ में आ गया? तो डायग्राम में एक साइड में है कॉस्ट पर यूनिट एंड वन साइड इज क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट्स और टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। भारत माता की तोड़ मालिक। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड विच कैन बी द बेस फॉर अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये तो ठीक है। लास्ट लाइन भी हाईलाइट कर दो। एज बिजनेस ग्रोज इट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ इट्स एक्सपीरियंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इज रिलेवेंट फॉर नंबर ऑफ एरियाज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। याद रहा तो ठीक, नहीं लिखा तो भी कोई टेंशन नहीं। नॉट ए बिग डील, मतलब इट इज नॉट ए कंपल्शन कॉन्सेप्ट टू बी रिमेंबर्ड। तो पंटर लोग, ऑनलाइन पंटर लोग, एवरीबडी, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड। एनी डाउट मैसेज करिए, बट मेरे को पहले बताइए क्या दोनों कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में बैठे हुए हैं? व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस फर्स्ट? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एक्सपीरियंस का। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज द बेसिक स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एंड वी आर शिफ्टिंग नाउ इनटू विच चैप्टर? चैप्टर 4th। चैप्टर 4th इज योर स्टार्टिंग चैप्टर टू कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे? 4th। अभी पूरा कंप्लीट चैप्टर 4th पे स्टिक रहेंगे। चैप्टर 4th पे रहेंगे, लेकिन चैप्टर 4th के लिए जो जो बेसिस है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो चैप्टर 4th विल बी फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। चैप्टर 4th कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में टोटल 4 स्ट्रेटजीज है, जिसमें से 4 स्ट्रेटजीज में से पहली 3 स्ट्रेटजीज आपके लिए तोड़ है, चौथी वाली तो कॉम्बिनेशन ही है। पहले 3 का नाम है आपके लिए स्टेबिलिटी, एक्सपांशन। इन तीनों में से भी 70% पोर्शन एक्सपांशन में गया हुआ है। 70% पोर्शन किसमें है? एंड मेरे ख्याल से आई डू थिंक एवरीबडी वुड एग्री, ओके, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन एंड रिट्रेंचमेंट, तीनों में से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है? प्राइड देने वाली स्ट्रेटजी कौन सी है? अभी इमेजिन करो किसी ने पूछा तुम कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो? स्टेबिलिटी यूज कर रहा हूं। ठीक है यार, मजा नहीं है ना? और एक्सपांशन कर रहा हूं, मार्केट कैप्चर कर रहा हूं। ओ भाई साहब, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। तो व्हाट इज द प्राइड फॉर पीपल? एक्सपांशन और स्टेबिलिटी? एक्सपांशन, बट स्टेबिलिटी कम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इनिशियली अगर कोई मैनेजर रहे वगैरह वगैरह रहे तो उनको किस पे फोकस करना पड़ेगा? एक्सपांशन। तो आपका एक्सपांशन 70% पोर्शन है, स्टेबिलिटी ओके एक पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, एंड वन मोर पोर्शन विल बी रिट्रेंचमेंट। और रिट्रेंचमेंट में भी वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टर्न अराउंड। डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन पे तो कोई मसाला भी दिया नहीं है, नो कंटेंट ओनली, बट द कॉन्सेप्ट यू आर क्लियर। डाइवेस्टमेंट स्मॉल पोर्शन, टर्न अराउंड अ गुड डिस्कशन। टर्न अराउंड वॉज देयर इन लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। ओके, पिछले अटेम्प्ट में टर्न अराउंड आया, इन अर्लियर अटेम्प्ट देयर वाज अ एक्सपांशन। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू एवरी, अरे भाई चैप्टर 4 में से तो आपको आना ही आना है, चैप्टर 4 में से आना ही आना है। May 24 में it was for 10 marks, in September 24 it was for theory for 5 marks, only one question on turnaround. May there were 2 questions, one was on particular point of expansion and one was concept on one matrix which is discussed here. तो मैट्रिक्स में अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा आइटम में क्या आया हुआ है। लेकिन हम क्या करें सर, हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? मैं आपको वापस बता रहा हूं, थियरी में आप एक्सपेक्ट करिए, थियरी में आप एक्सपेक्ट करिए एक क्वेश्चन तो किधर नहीं गया। कितनी स्टडीज है अपने पास? 3 में से तो एक तो थियरी का कॉन्टेक्ट बैठेगा, और कॉम्प्लिकेटेड किधर है? एक्सपांशन। ओके, विल डिस्कस ऑन दैट। फर्स्ट अपना स्टेबिलिटी स्टडी चलते हैं। तो एवरीबडी विथ मी नाउ, ठीक है। चैप्टर 4 के पहले 2 पेज छोड़ दोगे, आप स्टेबिलिटी स्टडी पे टिके रहोगे। पहले 2 पेज सर कब पढ़ने हैं बताऊंगा मैं, मेरे साथ ये सब डिस्कस है, बस वो 2 पेज को फिट कब करना है वो मेरे पर छोड़ो। तो आप डायरेक्टली कौन से पेज पाओगे चैप्टर 4 के? स्टेबिलिटी लिखा होगा ना, उधर आओगे। और अभी नोट्स में कुछ देखोगे नहीं, पेज नंबर 4.3 पे। Okay, sir. Now discussing about stability strategy. Listen carefully. इधर क्या लिखा हुआ है? ये सब पंचायती है। ओके, ये पंचायती अपन पढ़ेंगे, कीवर्ड हाईलाइट करेंगे, बात के इशू है। अपना डिस्कशन अपना ही चल रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट डिस्कशन, मेरा पहला पॉइंट, हाउ मेनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस आर देयर? नाम, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इन विच स्टेज वी फोकस ऑन स्टेबिलिटी? मैच्योरिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी?
नहीं, स्टेबिलिटी विल बी यूजिंग देयर, बट ग्रोथ इज स्लो, यानी न्यू मार्केट इज कमिंग इन और नॉट कमिंग इन, नॉट कमिंग इन। तो यानी स्टेबिलिटी कब करना है, जब एनवायरमेंट में और मार्केट बचा है या मार्केट खत्म हो चुका है। तो मेरे को बताओ, एनवायरमेंट स्टैटिक है या डायनामिक है? एनवायरमेंट डायनामिक है, डायनामिक है तो स्टेबिलिटी काम कर पाएगा क्या? डायनामिक मतलब बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कभी काम नहीं करता। तो मेरे को बताओ, स्टेबिलिटी को काम करवाने के लिए वी शुड रिक्वायर एनवायरमेंट शुड बी स्टैटिक, मतलब रिलेटिवली स्टैटिक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर एनवायरमेंट में अभी भी बार बार चेंजेस हो रहे हैं, लिसन केयरफुली, इफ देयर इज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरमेंट मोर फ्रीक्वेंटली, स्टेबिलिटी इज नेवर सजेस्टेड, stability is never suggested. So to use the stability, first of all you need to understand environment is relatively static or stable. Environment is relatively, then only I can use the stability. First concept keep in mind. Second, in stability I am focusing on existing market and existing product. Once again, existing market and existing product. Had you heard this word earlier also in one of the strategy, existing market, existing product? In which strategy? Market penetration. So what is the difference between market penetration and stability then? Because both are having the concept same, existing market, existing product, existing market, existing product. So what is the difference between both of the strategy when I'm saying market penetration, which is also having existing market and existing product, and stability having existing market, existing product? In market penetration कुछ ऐसा मिक्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, एक कोई बताएगा मेरे को, ये चल रहा है क्या? सुबह चला गया, यूज ही नहीं किया। हेलो 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 हेलो, कब इधर उधर चलता है कोई? इंडिविजुअली मेरे को बताओ, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, ओके, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन? पहला वो बेस रेडी करते हैं। स्टेबिलिटी में, अच्छा, मार्केट पेनिट्रेशन में मार्केट इज व्हाट, न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, existing, this is fixed na? Okay, now in stability also the same concept works. Market is existing, product is, I hope जेब क्या मालिक है। तो पर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? मार्केट, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन में, स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या रहेगा? सर, इन एक्सपेंशन वी ट्राई टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, increase the market share. And in stability we try to maintain our market share. That is a big difference. One is maintenance of market share and one is increase of market share. Okay, so my question again going on flow with flow. तो second question मेरा इसके बाद relatively question आता है, इसका मतलब stability में growth है ही नहीं क्या? Stability में growth है ही नहीं क्या? We have discussed this one, आज ही डिस्कस किया है। When I am explaining the product life cycle, I link this concept. Growth है या नहीं है? है, पर कैसा ग्रोथ है? Comparatively स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है। डिक्लाइन नहीं है, डिक्लाइन होना चालू हुआ मतलब लग गई। तो डोंट यूज स्टेबिलिटी व्हेन देयर इज ए डिक्लाइन। इफ देयर इज ए स्लो ग्रोथ यू कैन गो विद स्टेबिलिटी, बट इफ देयर इज ए गुड ग्रोथ इन मार्केट यू कैन यूज एक्सपेंशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। मोर कंसर्न, you may have wordings like this also. In stability we can have related market also, we can have related products also. यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट रिलेटेड मार्केट भी रह सकता है। रिलेटेड मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, नियर अबाउट, रिसेंबलिंग विद दैट प्रोडक्ट कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। लेकिन सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इज मेंटेनिंग द शेयर। My question, maintaining the share, I don't want a new share now. I don't want a new share. I want to just maintain my share. Please understand, I just want to maintain my share. Does it mean that I'll be doing nothing? So what exactly I'll be doing then? In stability, what exactly I'll be doing? मैं समझ गया, मैं आप बोल रहे हो सब कुछ समझ गया, मैं मेंटेनिंग हो गया, मैंने आपको समझा दिया, बट एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं फिर? स्टेबिलिटी कर, अच्छा मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं फिर? मैं मेंटेन कर रहा हूं, मैं समझा, कंप्यूटर पे ध्यान दे रहा हूं, कंप्यूटर पे ध्यान दे रहा हूं। ओके, बैरियर क्रिएट कर रहा हूं। बैरियर कब क्रिएट कर सकते हैं? ड्यूरिंग स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी में बैरियर का जरूरत ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं क्योंकि मार्केट ही नहीं है। अरे आपको मालूम है ना, कॉम्पिटिशन गेट टफ्स। ओके, तो उसके अंदर नया वाला आना बहुत मुश्किल है। नए वाले किधर घुसते? विच फेज में? ग्रोथ। मैं वापस बोल रहा हूं, जो मैं समझा चुका हूं वो लिंक है भाई साहब, तो आप उसको लिंक करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। एंड दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द एमसीक्यू अगेन। आई एम वरीड अबाउट दैट 15 मार्क्स। थियोरेटिकल तो आंसर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन क्लोज करके क्रैक करवा दूंगा,
चैप्टर 4 भी, चैप्टर 3 भी, ओफू इतने सारे लिखा दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रैक हो जाएंगे, मेरी गारंटी। बट द प्रॉब्लम है एमसीक्यू नहीं। एमसीक्यू के लिए यू नीड टू बी अलर्ट, एमसीक्यू के लिए यू नीड टू बी हैव दैट अलर्टनेस विद डिस्कशन। हाँ भाई ऐसा हुआ तो ऐसा लिंक्ड हो सकता है। और मैं आपको ऐसे एमसीक्यू आप वॉल्यूम 2 भी देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम 3 तो बाद में जाना। तो मतलब एमसीक्यू का कॉन्टेक्स्ट ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक श्योर व्हेन आई एम सेइंग मेंटेनिंग द मार्केट शेयर, यू सोट स्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम आई एम डिस्कसिंग स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विथ व्हिच फेज? मैच्योरिटी। इन मैच्योरिटी मार्केट इज ग्रोइंग। तो व्हेन आई से मार्केट इज ग्रोइंग विथ अ स्लो ग्रोथ, देन व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का कंटेक्स्ट क्या है? तो सुनिए, मेरे पास सबसे पहले मेरे पास एक मार्केट शेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ आई एम नॉट हैविंग ए मार्केट शेयर, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड स्टेबिलिटी। So when stability is opted, when there is a market share, but which market? Existing market, existing product. ये लॉजिक बेस रेडी करो। यानी इसमें न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट पे आप जाओगे। हाँ, रिलेटेड मार्केट, रिलेटेड प्रोडक्ट वर्ड कैन बी यूज्ड। विच वर्ड कैन बी यूज्ड? विच वर्ड कैन बी यूज्ड? रिलेटेड मार्केट, रिलेटेड प्रोडक्ट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है। एक श्रुति जी का आंसर आया ऑनलाइन में कि भाई जो मैंने आपको बोला मेंटेन करना मतलब क्या? तो श्रुति जी बोल रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करना। तो मेरे को बताओ एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करना क्यों होता है? कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर इज नथिंग बट एनवायरमेंट। विच एनवायरमेंट? एक्सटर्नल, जिसको नाम एनवायरमेंट ही बोलते हैं। तो एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करना चाहिए। स्टेबिलिटी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। इज स्टेबिलिटी डू नथिंग स्ट्रेटजी? नो, बट बीइंग अलर्ट टू द एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है क्या? कॉम्पिटिटर के साथ में कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस बदल रहा है तो मेरा जो शेयर प्रिजर्व किया हुआ है वो भी तो जाएगा। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस बदल रहा है क्या इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है? कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है क्या इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है? दिस इज व्हाट अ बेस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। My few questions, few concepts will मतलब coming into discussion, और ये चीज बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करके क्लोज करिए। बहुत अच्छे से समझेगा तो आप एक्सपांशन को भी बेसिकली ऐसे ही क्लोज कर सकते हो। मेरा पहला पॉइंट, ओके, एकदम बेसिक पॉइंट में आता है। ओके, स्टेबिलिटी में विच मार्केट इज देयर? एग्जिस्टिंग, न्यू, वर्ड बोलते जाइए आप वर्ड बोलते, ऑनलाइन पढ़ लो आप भी बोलते जाइए, फटाफट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। मेरे को फटाफट आंसर चाहिए। स्टेबिलिटी में विच मार्केट? स्टेबिलिटी में विच प्रोडक्ट? एग्जिस्टिंग। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। ग्रोथ इज देयर और नॉट देयर? देयर। विच ग्रोथ? स्लो ग्रोथ। ओके, कैन आई यूज द वर्ड इंक्रीमेंटल ग्रोथ? तो सर क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मेरे को बताइए ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, क्या इसमें अपन रिस्क ले रहे हैं या रिस्क बहुत कम है? रिस्क बहुत कम है। तो रिस्क किस में होता है? तो रिस्क, अच्छा देखो, एवरी टाइम जब तक धंधा है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। ओके, दैट इज बेसिकली टेक्निकली लॉजिक इन अ मूवी, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, एवरी बिजनेस विल हैव ए रिस्क। ओके, व्हाट इज द रिस्क? रिस्क ऑफ बीइंग फेलियर। इन स्टेबिलिटी इज देयर ए बिग रिस्क? अच्छा, मैं वापस बोल रहा हूं, इज स्टेबिलिटी डू नथिंग स्ट्रेटजी क्या? नहीं, इट मींस वॉचिंग एनवायरमेंट। यानी मैं अलर्ट हूं, यानी उन्होंने स्टेप लिया तो मां कसम फिर मैं दूसरी स्ट्रेटजी यूज करूंगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए। देखो, स्टेबिलिटी कैन नेवर बी परमानेंट स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी कैन बी ओनली फॉर सम पीरियड। आफ्टर दैट तो आपको किसी और स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो कुछ कर रहा होगा ना। तो मैं स्टेबिलिटी अगर यूज करता हूं तो लाइफ लॉन्ग नहीं यूज कर सकता। स्टेबिलिटी विल बी फॉर ओनली वे पीरियड। तो मेरा पॉइंट है, ओके, क्या इसमें मैं वॉच कर रहा हूं क्या? तो क्या यहां पर मेरे लिए रिस्क ज्यादा है क्या स्ट्रेटजी यूज करने का? और अगर आप ये बोल रहे हो तो मेरे को बताओ एक्सपांशन में क्या रिस्क ज्यादा है क्या? अच्छा, मेरे को बताओ एक्सपांशन और स्टेबिलिटी किसमें रिस्क ज्यादा है? In which risk is more? Why expansion risk is more? Suppose expansion में I am going with market development. What is the risk? What is meaning of market development? Existing product, new market. What is the risk? नहीं पसंद आया क्या? अच्छा, अब मेरे को बताओ एक्सपांशन और स्टेबिलिटी किसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, कॉस्ट लगेगा। स्टेबिलिटी में कॉस्ट लगेगा क्या? स्टेबिलिटी में खाली अपन प्रिजर्व करके रख रहे ना रे। तो मेरे को बताओ किसमें पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा? क्योंकि एक्सपांशन में सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, लेकिन सक्सेस हुआ तो मां कसम इट्स करिश्मा। ओके, इट्स, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्टेबिलिटी में करिश्मा नहीं है ना। स्टेबिलिटी में ठीक है ना भाई, स्टेबिलिटी है, तुम्हारा मार्केट शेयर उतना ही तो है, तुमने क्या बहुत बड़ा काम कर लिया? तुम्हारे पास अभी जितने हो उतने ही तो थे। वेर इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क यू हैव डन। बट हाँ भाई, अगर बढ़ गया तो डोंट यू थिंक इट विल इंक्रीज द करिश्मा? Okay, that is where expansion comes into picture. So tell me, where risk is more? Where risk is less? I hope ये point समझा क्या?
पक्का समझा? रिस्क ऑफ फेलियर, तो रिस्क ऑफ फेलियर किसमें ज्यादा है? एक्सपेंशन में। ऐसा हो सकता है पब्लिक पसंद ही ना करे, लेकिन स्टेबिलिटी में पब्लिक पसंद ही ना करे ऐसा तो है नहीं ना यार, ऑलरेडी पसंद कर रही है ना। आई होप शिपिंग मालिक। तो अभी इसका अगला आंसर भी दे दो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट किधर ज्यादा लगती है? फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी में लगेगी नहीं, बहुत कम, रिलेटिवली लेस। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत कम किसमें? स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी में सेफ्टी है, स्टेबिलिटी इज सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच और नॉट? यस, इट्स अ सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच। मोर इंपॉर्टेंट, डज वी रिक्वायर रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस? मतलब क्या हमने बिजनेस को वापस पूरा एकदम चेंज करके नया कुछ करना है? पक्का। बट इन एक्सपांशन डू वी डू रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस? चेंजिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर कंप्लीटली। तो स्टेबिलिटी में क्या हमने ये चेंज करना है? अबे चेंज नहीं करना है, इसलिए तो स्टेबिलिटी है। तो मेरे को बताओ, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? पक्का। तो मेरे को बताओ टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं? करते क्या है? हम करते हैं वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस एंड फोकस ऑन आवर सीसी, कोर कॉम्पिटेंसी। हम ज्यादा हेडेक नहीं करते, हमारा जो ऑलरेडी। अच्छा मेरे को बताओ, स्टेबिलिटी कौन लेगा? जिसका 5% शेयर है या जिसका 60% शेयर है? पक्का। आई होप ये क्लियर है। 5% वाला स्टेबिलिटी, वाह 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 वाह, ये भी बढ़िया था। ओके, लेकिन है वो, उसमें पॉइंट पे बात करेंगे लेटर ऑन। आज के आज नहीं, इट्स ए 5th लेक्चर, ऑलमोस्ट वी आर ऑन 5th लेक्चर, बट डेफिनेटली बाय 25th लेक्चर यू विल बी मच बेटर विद दिस लॉजिकल डिस्कशन। बट राइट नाउ, ओके, हु इज हैविंग 70% मार्केट शेयर विल फोकस ऑन स्टेबिलिटी। ओके, नाउ टेल मी, एकदम सिंपल लॉजिक। ओके, अगर 70% मेरे पास शेयर है, ऑलरेडी मेरे पास स्टेबिलिटी अप्रोच है, ओके, तो मेरा टारगेट क्या है? ये शेयर जाना नहीं चाहिए, यही टारगेट है। तो मेरे को क्या करना है? ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल करना है। नहीं आया? अच्छा मेरे को बता, 70% मार्केट शेयर है, इज देयर ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद मी? लॉजिकली सिंपल है ना। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा, मैं तो पूरा टोटल एवरेज से ज्यादा ले रहा हूं। तो मेरे को बता, मेरे पास 70% मार्केट शेयर है, वो मेरी आत्मा हो, यस और नो? 70% मार्केट शेयर है मेरे पास, 70% मार्केट शेयर है मेरे पास। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो भाई साहब मेरे को बताओ, 70% मार्केट शेयर मेरे को लंबा रखना है या एक ही टाइम पे रख के छोड़ देना है? उसको क्या बोलते हैं? कल का एक वर्ड, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल सीए लाना ना, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके लिए मेरे को किस पे ध्यान देना होगा? सीसी, कोर। तो मेरे को बताओ, स्टेबिलिटी वाले किस पे ध्यान देते हैं? कोर कॉम्पिटेंस। तो दे फोकस ऑन द रिसोर्सेज विच इज अल्टीमेटली फोकसिंग ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। तो अपने रिसोर्स कहां पर लगाओ? कोर कॉम्पिटेंसी। भारत माता की जय। छिपा मलिक तक ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा आंसर, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, एक्चुअली आंसर भी नहीं है, आंसर बोलने वाला था पर मैं क्वेश्चन ही पूछता हूं। क्या इनको प्रॉफिट्स नहीं आते? अब मेरे को बताओ, अगर मैं स्टेबिलिटी अप्रोच है, इट मींस लास्ट मंथ देयर वाज अ 70% मार्केट शेयर विद मी, दिस मंथ आल्सो आई वांट 70 ओनली ना। विल माय प्रॉफिट इंक्रीज कंपेयर टू द लास्ट मंथ? मे बी, थोड़ा सा मे बी, थोड़ा सा एनालाइज बताइए। हाउ मे बी, मतलब हाउ माय प्रॉफिट विल इंक्रीज? डोंट से प्राइस बढ़ा देंगे। देखो प्राइस बढ़ाया बाई चांस, देखो मैं परमिशन कॉम्पिटिशन, आपने कुछ काउंटर किया, मां कसम मैं काउंटर करेगा। प्राइस बढ़ाओगे, आप बोलोगे प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे जो 30% वाला मार्केट शेयर है। तो ही विल आल्सो फोकस, वो भी तो देख रहा होगा, वो जैसे ही तुमने प्राइस बढ़ाया ये बोला आ जाओ मेरा प्रोडक्ट बेहतर है, यही प्राइस पे खरीदना है, तो वो प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो? क्वालिटी वाला खरीदो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब मेरे को बताओ फिर कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा? प्राइस बढ़ाने का कोई आंसर नहीं देगा, प्राइस बढ़ाने का दिया ना, मां कसम बोल रहा हूं। स्टेबिलिटी, इंडिविजुअल माइक कोई मेरे को अच्छे से बताओ, दिस आंसर नीड टू बी। ऑनलाइन पढ़ लोग, आप भी कुछ लिखो। सर क्या हम एक्सपेंशन में मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हैं? 100% यस। सेम मार्केट शेयर, ध्यान रखना अभिनव, सेम मार्केट शेयर, बात खत्म। यस पंडित। उसमें स्लो ग्रोथ तो है ना, इसलिए प्रॉफिट तो बढ़ते रहेंगे थोड़े। स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है? 70 का 75? नहीं 70 का 71 हो सकता है। तो 1% प्रॉफिट के लिए मैं रो रहा हूं क्या? 1% प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका बताओ मेरे को। अभी मेरे को आप बताओ, इतना ही मार्केट शेयर है, अगली बैच भी मेरी इतनी है, उसकी अगली बैच भी इतनी है, ठीक है। अब मैं कमाऊंगा कैसे? मैं, अगर आप बोलोगे इतना कमा लिया बस है ना सर, अरे पर मेरे को प्रॉफिट तो बढ़ाना पड़ेगा ना कैसे? थोड़ा सा एक माइक में लो, माइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कैसे करेंगे? वॉल्यूम बढ़ाकर। वॉल्यूम बढ़ा के
यार आप गलत जा रहे हो यार वापस। मेरे को बताओ वॉल्यूम बढ़ाना है स्टेबिलिटी? आई एम वेरी क्लियर ना यार। स्टेबिलिटी मतलब वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, इंक्रीमेंटल हुआ तो हुआ। तो स्टेबिलिटी में कैसे हो और बेहतर कैसे करेंगे? मैं कैसे करूंगा? हाँ, एक्सपीरियंस कब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? तो माइक ले, मैं पूछता हूँ ना, बरोबर, बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं अच्छे से। बस ये आई एम रिक्वायर्ड इन दिस फ्रेमवर्क ओनली। यस, बड़े बोलिए सर। स्टेबिलिटी स्टेज होगी तो एक्सपीरियंस के साथ, मतलब टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करोगे? मेरा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या था? पहला कारण क्या था? वॉल्यूम इंक्रीज, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज। एवरीबडी क्लियर? यस। तो क्वेश्चन ये है, तो वॉल्यूम तो अभी उतना ही है ना? नहीं समझ में आ रहा है? कमिंग बैक, एकदम आराम से, सेटल विथ लो आंसर। आप कॉन्सेप्ट सही जा रहे हो बट आउटकम सही नहीं आ रहा है। कॉस्ट पर यूनिट ही कम करना है, प्रॉफिट बढ़ने वाला नहीं ना, मार्केट बढ़ नहीं रहा तो प्रॉफिट बढ़ाओगे, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या कम करोगे? पर कॉस्ट कम कैसे होगी, ये क्वेश्चन है। अगर आपका कहना है, इफ यू आर सेइंग लाइक दिस, सर वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगा, अरे तो वो एक ऑप्टिमम लेवल पे तो आ ही चुके हैं हम लोग। यानी एग्जांपल 70% मार्केट शेयर के लिए व्हाटएवर आई एम मैन्युफैक्चरिंग नाउ, थिंक प्रैक्टिकली द सेम थिंग। Whatever I am manufacturing for 70%, next month also I will be manufacturing the same way. How I will reduce my cost then? Because if you are saying experience curve, volume increase, cost decrease. Here volume is not increasing. पिछले महीने 70,000 यूनिट बनाए, कॉस्ट पर यूनिट जो था, अगले महीने भी कॉस्ट पर यूनिट उतना ही रहेगा ना। कैसे कम होगा? टाइम। एनीबडी? यस, लर्निंग इफेक्ट, थोड़ा सा और उस पर एम्फसाइज। ओके, ठीक है, चलो परफेक्ट, ऑलमोस्ट यस। When we achieved experience, so बोल नहीं आ रहा क्या? मतलब जब एक्सपीरियंस मिल जाता है हमें, तो हमें इंफॉर्मेशन लग जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हम अल्टरनेटिव चीज को यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि आईफोन में टाइटेनियम यूज किया जाता है, टाइटेनियम की जगह हम स्टेनलेस स्टील भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है। ठीक है, ओके, आई एम गेटिंग सम पॉइंट। ओके, एक आंसर अपने को भी मिला। ओके, ऑनलाइन में भी शुभम आपका आंसर सही था। मुकेश जी, एक्सपेंस कम करना, मैं वही पूछ रहा हूँ कैसे एक्सपेंस कम करना? मतलब 2-4 एम्प्लॉय आओ मत, टेक ए हॉलीडे टुडे, वी आर ओनली एट 70 ओनली, वी कैन मैनेज 70। ऐसा नहीं होगा भाई। न्यू टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम करेंगे। अब मेरे को बताओ, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी अगर आपके दिमाग में आ रही है नई टेक्नोलॉजी है, तो इट विल बी स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन। आप बेस चेंज मत करो। मैंने आपको कीवर्ड्स अभी ऑलरेडी समझाया है। मेरे को बताओ इनस्टेबिलिटी। अच्छा सुनो मेरी बात शिद्दत से। इनस्टेबिलिटी, पहले 3-4 वर्ड तो आप दिमाग में फिट कर लो। स्टेबिलिटी में रिस्क ज्यादा या कम? पक्का ना? क्यों कम था? अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती रिस्क ज्यादा होता ना, तो रिस्क कम है। सेकंड, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा या कम? मैं कंपेयर किसे कर रहा हूं? एक्सपेंशन से। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो ज्यादा ही लगने वाला है ना। तो यहां पर टेक्नोलॉजी का डिस्कशन मत करो, बिकॉज इनोवेशन अगर यहां पर आता है तो आप शिफ्ट करते हो विच स्ट्रेटजी? एक्सपांशन। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन विल नेवर बी देयर फॉर स्टेबिलिटी। इफ देयर द मार्केट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन, if market requires technology innovation, using a stability is doing a suicide. If market requires technology innovation, taking a stability decision is a suicide. Because सबसे पहला start करते मैंने बोला था environment is relatively stable. When I'm saying environment is relatively stable, मतलब environment does not require new or innovation things. इफ यू एक आंसर में आपने अगर ये पॉइंट लिख दिया कि भाई नया टेक्नोलॉजी आया है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और सस्ता करेंगे, भाई साहब नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही इटसेल्फ में एक्सपेंशन है भाई साहब। तो सर फिर क्या करते हैं? द बेस्ट आंसर हैज बीन दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन कैच्ड। अच्छा, इन्होंने जो बोला उसके ऊपर भी बात करता हूं। वट एवर डिस्कस, ऑनलाइन वाले पंटर लोग मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट समझा। रिनोवेशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मां कसम मैं जहर खा लूंगा अभी। रिनोवेशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट किया मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट ना यार, सेंसिबल लॉजिक बनना चाहिए यार अभी ये। मेरे को बताओ, अच्छा इनोवेशन चेंजिंग ए प्रोडक्ट इज एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी? एक्सपेंशन में भी कौन सा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये वाले लॉजिक नहीं लगेंगे सर। एक एप्पल का पॉइंट बना है, इन्होंने बोला सर एप्पल का प्रोडक्ट लिया अपन ने, वी आर मैन्युफैक्चरिंग विद टिटेनियम। टिटेनियम इज ए कॉस्टली मेटल। नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओके, वी कैन चेंज टिटेनियम टू स्टील टू रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट।
Now technically if you change to steel, okay, can customer shift to the other products also? So keeping the same thing, when I'm saying stability, आप चेंज कर रहे हो, मतलब कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंज कर रहे हो, इसीलिए मैं एक वर्ड स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, एग्जिस्टिंग। आपने जैसे ही टेक्नोलॉजी मतलब वो स्टील चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट चेंज किया, इसका मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यू आर शिफ्टिंग टू एक्सपांशन। ओके, क्योंकि आपने जब स्टील चेंज किया तो इट में हैपन सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पर्सन वर नॉट लाइकिंग टिटेनियम, दे वर नॉट चूजिंग टिटेनियम, नाउ दे मे चूज स्टील वाला प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। स्टेबिलिटी में द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट, प्रोडक्शन नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, दिस इज नेवर ए कॉन्सेप्ट, देन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लर्निंग इफेक्ट। ओके, जो कि एक्सपीरियंस कर्व का एक फैक्टर था। एक्सपीरियंस कर्व का एक फैक्टर, 4 फैक्टर थे ना, व्हाट आर द फर्स्ट फैक्टर? लर्निंग इफेक्ट मतलब क्या था, क्या समझा मैंने? एज एंड व्हेन वी ग्रो वी लर्न। अब मेरे को बताओ, ओके, खाली जब ग्रो करेंगे इसका मतलब वॉल्यूम ग्रो होगा तब लर्न करेंगे, या एक काम बार बार करेंगे तो भी लर्न करेंगे? तो अब मेरे को बताओ, इन फर्स्ट मंथ 70% मार्केट शेयर के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, सेकंड मंथ ओके सेम 70% के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, थर्ड मंथ सेम 70% के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया। डोंट यू थिंक इन लास्ट 3 months आई वुड अंडरस्टैंड ए बेटर वे टू परफॉर्म दैट पॉइंट? देयरफॉर दिस वर्ड इज कॉल्ड एफिशिएंसी। व्हाट इज कॉल्ड? एफिशिएंसी। वी बिकम मोर एफिशिएंट। Again I'm telling you, I am not reducing cost per unit because market volume is increasing. अरे भाई, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो आप इसमें रहो ही मत, इसमें वॉल्यूम आपका कितना है, सेम, तो फिर अपन कॉस्ट पर यूनिट कम कैसे करेंगे? लर्निंग। लर्निंग को वर्ड क्या दिया इधर? एफिशिएंसी। तो यहां पर मेरे को बताओ, यहां पर आपका टारगेट किसके ऊपर है? ओके, पहला पॉइंट, आराम से कमिंग बैक टू द अर्लियर पॉइंट ऑल्सो। ओके, माई टारगेट इज फोकसिंग ऑन रिसोर्सेज टू क्रिएट माई सीसी, and this core competency can be better by making myself efficient। तो मतलब कोर कॉम्पिटेंसी हिलनी नहीं चाहिए और साथ में मैं क्या बनना चाहिए? एफिशिएंट। एक बेस एग्जांपल, जब मैं पहली बार बैच लूंगा, ये बैच लिया था एसएम का, आई वुड हैव टेकन एक्स टाइम। सेकंड बार बैच लिया, क्या वो एक्स टाइम लगा है क्या? रे बच्चे उतने ही रहेंगे। देखो, बच्चों में नंबर में चेंज हुआ तो थिंग्स विल चेंज। Example, if this batch goes for 900, the things will change. If batch comes of 100, the things will change. Batch बन जाएगा 10 का, उसमें तो और फटाफट होएगा। पर मैं बोल रहा हूं कीपिंग द थिंग्स कांस्टेंट। तो मेरे को बताओ, एज्यूम करो यही बैच साइज एवरी टाइम आई एम गेटिंग। नाउ थिंक लॉजिकली, द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम टीचिंग द सेम बैच साइज, विल आई बी टेकिंग द सेम टाइम? नहीं। पर पॉइंट याद रखना, इसका मतलब ये नहीं मैं पूरा टाइम कम करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ाऊंगा, बट एक ऑप्टिमम टाइम पे आएगा ना। दैट इज टारगेट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बोलता है अपने रिसोर्सेज ऐसे लगाओ, अपने रिसोर्सेज ऐसे लगाओ कि आप क्या इंक्रीज कर सको? एफिशिएंसी। एंड अल्टीमेटली आपकी क्या बढ़े? सीसी। सीसी कोर कॉम्पिटेंसी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? पक्का? तो मेरे को बताओ, प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि नहीं होता है स्टेबिलिटी में? प्रॉफिट बोला, मार्केट शेयर नहीं बोला। प्रॉफिट इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट? कॉस्ट पर यूनिट को नहीं बोलेंगे अपन, कॉस्ट पर यूनिट नहीं, एफिशिएंसी। ओके, इन स्टेबिलिटी वी बिकम मोर एफिशिएंट, एंड बाय बिकमिंग मोर एफिशिएंट वी कैन इंक्रीज core competency. We can focus, my core competency can be improved, and because of it my profit can be increased. But याद रखना, एकदम एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट नहीं बढ़ता, स्लो ग्रोथ वाला प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा। मतलब लास्ट मंथ 70% मार्केट शेयर, यू वुड बी हैविंग एक्स प्रॉफिट, द नेक्स्ट मंथ इट विल बी एक्स प्लस सम परसेंटेज, बट मार्केट शेयर इज सेम। तो अभी यार सेम मार्केट को डील कर रहा हो, फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, दैट इज मेन टारगेट हियर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, फर्स्ट मेरे को आप बताइए, अगर ये स्ट्रैटेजी कब यूज करनी चाहिए? आई एम आस्किंग ए बेसिक क्वेश्चन अभी, जो आपको सब मालूम ही है। ओके, यू टेल मी, ऑनलाइन पर लोग समझ में आएगा मालिक? सर, प्रोडाउन डिस्काउंट पे देके सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ सकता है। मेरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना, विच स्ट्रैटेजी? मार्केट पेनिट्रेशन। अरे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना, आपको ये समझना पड़ेगा भाई। प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना इज, अच्छा मेरे को बताओ, अभी मैं 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं और वो मैं 8 रुपए कर दूंगा। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक सेल्स भी बढ़ेगा? तो सेल्स बढ़ गया मतलब क्या हुआ? मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब कौन सी स्ट्रेटजी थी? एक्सपांशन। ये स्टेबिलिटी में ना इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करने का। स्टेबिलिटी में जो दे रहे हो ना उसी प्राइस पे बेचो, जितना वॉल्यूम दे रहे हो उतना ही वॉल्यूम दो। पहला ये दिमाग में बिठाओ, प्राइस वही,
वॉल्यूम भी वही। अब इस केस में आप कैसे इंप्रोवाइज करते हो वो देख लो। इसको वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप अगली स्ट्रेटजी में जाते हो, द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब मेरे को आप बताइए व्हेन यू विल सिलेक्ट दिस स्ट्रेटजी। दो एग्जांपल आपको आने चाहिए और दो एग्जांपल अपन इंप्रोवाइज डिस्कशन में करेंगे। ओके, फर्स्ट रीजन व्हाई वी शुड सिलेक्ट स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या बोला आपने? आई में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इससे, तो एक्सपेंशन से नहीं है। He is discussing that there will be a competitive advantage. So my question, with expansion we can't achieve competitive advantage? Can we? Competitive advantage is everywhere. मतलब वही टारगेट है अपना। But my question, अच्छा क्वेश्चन सुनो वापस, क्वेश्चन सुनो। When organization should decide stability? पहला आंसर जो आज सुबह से पढ़ रहे हो, फर्स्ट और स्टार्टिंग आंसर पढ़ा उसमें, which stage? तो पहला आंसर, इफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट विच यू आर डीलिंग इज इन, यू कैन सिलेक्ट स्टेबिलिटी। सेकेंड आंसर विच आई हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस सेशन, नहीं, हाँ मतलब एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा है? रिलेटिवली स्टेबल। स्टेबल कभी नहीं होएगा, रिलेटिवली। कैन आई यूज स्टेबिलिटी? यह दूसरा पॉइंट। आई होप झेपा मालिक, ठीक है। मेरे को बताइए व्हाई नॉट एक्सपांशन, व्हाई स्टेबिलिटी? रिस्क, यानी एक्सपांशन इज बिकमिंग ए थ्रेट नाउ। एक्सपांशन क्या बन रहा है? थ्रेट। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट व्हाइल वी गो फॉर एक्सपांशन इट कैन क्रिएट ए थ्रेट फॉर अस। सर एक्सपांशन थ्रेट हो सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज मैंने क्या बताया था, एक्सपांशन और स्टेबिलिटी किसमें रिस्क ज्यादा है? एक्सपांशन। अब देखो, इफ आई एम थिंकिंग फॉर एक्सपांशन, इफ सपोज आई एम सेइंग ओके पुणे का मार्केट आई एम डीलिंग, नाउ आई वांट टू एक्सपैंड इन हैदराबाद मार्केट, ओके आई विल बी अनाउंसिंग बैच इन हैदराबाद। Possibility it may happen because of that Hyderabad batch, it may have an impact on Pune ki batch also. It may have impact on Pune ki batch, and this can create a problem, and therefore that expansion is nothing but a threat. अच्छा, दूसरा point in expansion. Suppose I go in Hyderabad market. Suppose I am going in Hyderabad market. I planned it out, and I am managing well. I am managing Pune also, and Hyderabad also, and Mumbai also. But at the same time, I am aware that SM will be removed by ICAI. SM ये सब्जेक्ट निकलने वाला है, तो अब मेरे को बताओ, मैं उधर जाऊंगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर करूंगा, ओके, डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा टाइम चलेगा या लग जाएगी? तो मेरे को बताओ, एक्सपेंशन क्या बन रहा है मेरे लिए? थ्रेड बनेगा। तो भाई अगर एक्सपेंशन थ्रेड बन रहा है तो बेस्ट ऑप्शन चुपचाप इज्जत से पुणे और मुंबई में कमाओ ना, काय के लिए हावड़े जैसे काम करना। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, देखो एक स्टेबिलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट ओवर ए पीरियड आता है मालिक। ओके, इनिशियली इफ यू आस्क मी व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ स्ट्रक्चर वाइज, मेरी लाइफ ऐसे बहुत बड़ी प्रिंसिपल वाली बनी हुई है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज 2013 से लेकर 2017-18 आई डिड मतलब वर्क लाइक एनीथिंग मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सुबह 6:30 बजे से चालू होता था, रात के 11 बजे तक लेक्चर एवरी डे, एंड आई यूज्ड टू टेक लेक्चर्स अक्रॉस एवरीवेयर। अभी तो वर्चुअल आ गया, इसीलिए आई एम स्टिकिंग टू द वन मार्केट, रीजन सिंपल, बिकॉज ऑफ वर्चुअल आई कैन रीच एवरीवेयर। Earlier that concept of virtual was not there. Virtual adapted during COVID times. तो 2019 के पहले भी वर्चुअल थे पर लिमिटेड थे। अगर आपको मानूंगा पेन ड्राइव गूगल ड्राइव नहीं थे, मतलब मैं सेंटर पे जाना पड़ता था। There was something like that. तो I used to travel a lot. मतलब मैं आपको बताऊं, I'm not from Pune, I'm from Mumbai, but in Mumbai I used to stay only 2 months. एक साल में इतना ट्रैवल करता था, इतना ट्रैवल, बस काम करना। 2017 में मेरी बीवी ने बोला ये क्या कर रहा है? मैं बोला काम कर रहा हूं। ओके, किसके लिए कर रहा है? मैं बोला तेरे लिए और रितिका के लिए। रितिका मतलब माय डॉटर, तेरे लिए मतलब मेरी बीवी। हाँ, तब तक आदि नहीं आया था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑल्सो कि आने वाला है। आगे वो 2019 में आया, 2017 की बात थी, तब तक तो मैं बोला तेरे लिए और रितिका के लिए कर रहा हूं मैं पूरा मेहनत। तो बोले ये सब कर रहा है लेकिन हमसे मिल कब रहा है? फिर मैं बोला हाँ, तो बोल रहे या तो ये बंद कर, ओके, या तो मैं जा रही। एंड टेक्निकली जारी करके ऐसा नहीं बोला उसने बोला चुपचाप बंद कर दे। एंड एक लाइफ का प्रिंसिपल एकदम क्लियर समझ में आया, बीवी ने बोला करने का बात खत्म। मतलब देयर इज नो फर्दर डिस्कशन। अगर अपने को पर्सनल लाइफ में शांति चाहिए, अगर मेरे को सुकून चाहिए पर्सनल लाइफ में, मेरे को चाहिए कि घर पे जाने के बाद ऐसा ना हो। ओके, यानी पर्सनल लाइफ में मुझे क्या चाहिए अभी? स्टेबिलिटी। ओके, जब मैं कॉलेज में था, ओके, जब कॉलेज से सीए कर रहा था, उसके बाद मेरे को एक्सपेंशन चाहिए था। एक्सपेंशन हुआ, अमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ,
मर्जर के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुए. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिर थोड़ा टाइम रुका और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ. बट अभी आफ्टर मल्टीपल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी. बस हो गया भाई. तो स्टेबिलिटी के लिए अपना एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर पकड़ के चलो. ओके, और फोकस ओनली ऑन एफिशिएंसी. तो इसीलिए ओवर ए पीरियड टाइम आई एम सेटल डाउन, मतलब बहुत रिलैक्स्ड है. ओके, जितना बेस चाहिए सब है भाई. ओके, क्योंकि अगर मैंने वाइफ को बोला ना कि मेरे को और कमाना है, बोले किसके लिए? फिर मैं बोलूंगा ये, बोले हो है ना भाई, और क्या मतलब बहुत सारा डिस्कशन ही होता है. तो स्टेबिलिटी वाले लोगों के लिए द अप्रोच इज सिंपल, द एक्सपांशन इज थ्रेट. स्टेबिलिटी वाले पीपल डज नॉट लाइक एक्सपांशन. स्टेबिलिटी पीपल डज नॉट लाइक स्टेबिलिटी. इधर से सुना मैंने, स्टेबिलिटी पीपल डज नॉट लाइक स्टेबिलिटी. मां कसम. स्टेबिलिटी पीपल डज नॉट लाइक एक्सपांशन. और जिसको एक्सपांशन पसंद है उसको क्या पसंद नहीं? स्टेबिलिटी. ये दोनों अपोजिट है. ओके, पर प्राइड किस में? एक्सपांशन. अभी आप, अगर मैं यही 5 साल पहले 10 साल पहले, अरे भाई साहब तोड़ क्या काम कर रहा है, अभी बोलेगा क्या काम कर रहा है, ठीक है, पर अभी मेरे को दूसरा काम मैनेज करना है. तो एवरी मैनेजर विल हैव इट्स ओन परसेप्शन. बस मेरे को प्रिजर्व करना है मेरा मार्केट शेयर, इससे ज्यादा अपने को हेडेक नहीं करना है. दैट्स ओनली अ फोकस हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एम्प्लॉइज विल बी कंफर्टेबल. अच्छा, एक एग्जांपल आपको याद होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन? अगर आपको याद है, इफ रिमेंबर, आई टोल्ड यू, इफ आई एम डेवलपिंग ए स्ट्रेटजी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन? इंप्लीमेंटेशन मतलब चेंजिंग ए स्ट्रक्चर. डू यू रिमेंबर? एग्जांपल याद दिलाता हूं. मुंबई में मेरा क्लास था, आई स्टार्टेड इन पुणे. ओके, ये स्ट्रेटजी था. दिस वाज प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट. तो मेरे को बताओ, पुणे स्टार्ट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या था? क्लासरूम लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजर. याद आया? तो इंप्लीमेंटेशन मतलब चेंजिंग इन स्ट्रक्चर. अब मेरे को बताओ, क्या चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे या रेजिस्ट करेंगे? रेजिस्ट. इट्स नॉट इजी. चेंज इज नॉट इजी फॉर एवरीवन. If I am going with expansion, if I am going with other strategies, okay, my employee resist because there is a change, there is a division of powers, there can be multiple elements. But this is not happening with which strategy? Stability. And think logically, in stability strategy, employee will be feeling comfortable or not comfortable? Not comfortable. मैं दो अलग अलग पढ़ रहा हूं MCQ, ध्यान रखना. Manager is pride in expansion, okay, but employees are comfortable in स्टेबिलिटी. दिस इज ए डिफरेंस. स्टाफ को बोलते हैं भाई जाने देना, अरे ये जो चल रहा है वो चलने दो ना, अरे नहीं बढ़ाने का, ये करने का. स्टाफ के लिए काम बढ़ जा रहा ना, तो स्टाफ विल बी कंफर्टेबल विथ स्टेबिलिटी. तो अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हिलाना नहीं है, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, आई डोंट वांट माय एम्प्लॉय फील अनकंफर्टेबल, विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट? स्टेबिलिटी. लेकिन आपको याद रखना होगा, खाली ऐसे आप बोलोगे स्टेबिलिटी है और एनवायरमेंट डायनामिक है, विल नेवर वर्क. This all point need to be gathered together. Okay. And last point for the day to close it. और इसके बाद में एक फ्लो आप ध्यान रखना. Okay. एक्विजिशन किया. एक्वायर करना मतलब क्या? एक कंपनी को okay, अपने कब्जे में ले लेने का. एक्विजिशन किया. स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? स्टेबिलिटी या एक्सपेंशन? और एक एक्विजिशन किया, और एक एक्विजिशन किया, और एक एक्विजिशन किया. ऐसा जिंदगी भर एक्विजिशन करोगे ना, बायजू बन जाओगे. और आपको मालूम पड़ा बायजू का क्या हुआ? बायजू का मालूम है कि नहीं? देखेंगे एक केस स्टडीज में अपन देखेंगे जब रिट्रेंचमेंट की बात आएगी. बट बायजू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, दे वेंट विथ एक्सपेंशन ड्रामेटिकली, बट दे डिडंट कम टू एन हॉल्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आफ्टर नंबर ऑफ एक्विजिशन सीरीज, आफ्टर नंबर ऑफ एक्सपेंशन सीरीज, देयर शुड बी सम पीरियड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंशन. And that benefit period is called stability. So when you should use the stability? After multiple expansions. To consolidate that expansion. To consolidate that, you require to use stability. यानी अभी मैंने क्या किया? Expansion. और एक क्या किया? Expansion. और एक क्या किया? अरे expansion को अभी consolidate करो. Because your next expansion decision may go wrong. So to consolidate this all things, you require which strategy? Stability. So I hope everybody clear with the stability. तो स्टेबिलिटी में अपन दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. कल सबसे पहले शुरुआत होगी स्टेबिलिटी की. स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट अपोजिट कौन? जो स्टेबिलिटी में पॉइंट पड़े वो सब उल्टे. तो एक्सपेंशन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा. ओके, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ज्यादा रहेगा. सेफ्टी और रिस्क रहेगा. ओके, आर वी फोकसिंग ओनली ऑन एफिशिएंसी और न्यू मार्केट्स? एंड बाकी तो आपको पता ही है, मार्केट पेनिट्रेशन
मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. एक ही ऑप्शन है एक्सपेंशन का या मल्टीपल? तो वी हैव ए डाइवर्स पोर्टफोलियो फॉर एक्सपेंशन. वी हैव ए डाइवर्स पोर्टफोलियो फॉर एक्सपेंशन. आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक. सी यू टुमारो. अस्सला वेस्ता. टेक केयर मालिक. ओके, एक क्वेश्चन मुकेश जी का आया, मैनुअल वर्क शिफ्ट टू ऑटोमेशन. मुकेश भाई अभी आपने आंसर देना चाहिए. ये एक्सपांशन है. ये मैनुअल टू ऑटोमेशन मींस यू आर सेविंग द कॉस्ट रिसोर्सेज. इट इज नॉट स्टेबिलिटी, इट इज एक्सपांशन. मुकेश भाई, अरे पीडीएफ पूरे बुक का शेयर किया हुआ है मालिक. मैंने पूरे बुक का शेयर किया हुआ है. विनोद सर के चैनल पे भी है, मेरे चैनल पे भी है और प्रशांत सर के चैनल पे भी है. थैंक्स बड़ी.